Hello friends, this is our third class of HVAC for industrial purpose. Psychometry. In previous class, we studied about the psychometry. Psychometry is a study of science which deals with the physical properties of moist air. Psychometry एक स्टडी है साइंस की जिसको हम डील्स करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर के थ्रू. In this, the physical properties are dry bulb temperature, degree centigrade and Fahrenheit. Wet bulb temperature, degree centigrade it is measured in degree centigrade and Fahrenheit. ये डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में मेज़र होता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज़ मेजर्ड इन परसेंटेज. एंड डब्ल्यू ह्यूमिडिटी रेशियो HR ग्रेन्स पर पाउंड इट इज़ मेजर्ड इन ग्रेन्स पर पाउंड. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड and degree Fahrenheit. The human comfort temperature lies between 22 degree centigrade to 26.5 degree centigrade temperature, which is already discussed in the previous classes, जो कि पहले की क्लासेस में आपसे डिस्कस हो चुका है. 30% and 70% is humidity is also a comfort zone for the humid comfort temperature. This is a chart of psychometry chart prototype. The straight line, horizontal straight line show the humidity ratio. Inclined line show the wet bulb temperature, and the curved line show the relative humidity, and vertical line show the dry bulb temperature, and this scale show the dew point temperature. For example, if we take dry bulb temperature 75 degree Fahrenheit and relative humidity 50% given in a psychometric chart, then find out how to find out the other values. अगर आपको 75 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है तो आप ह्यूमिडिटी रेशियो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर साइकोमेट्रिक चार्ट के थ्रू निकाल सकते हैं. अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे निकलता है. सबसे पहले wet bulb temperature lies in this curve line here, where when this inclined line, ये inclined line जहाँ पर भी आपकी इस कर्व से टकराएगी वहाँ पर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी. हेयर इज़ वेट बल्ब टेम्परेचर 62.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. This is vertical line which show the dry bulb temperature. Dry bulb temperature is 75 degree Fahrenheit, and this is curve line. This line show the 50% relative humidity, and where is horizontal line is touches from this line. This value is 65 grams per pound. This is your humidity ratio, and dew point temperature is 56 degree Fahrenheit. When we check these values in psychometric chart, we find this value as per the psychometric chart. This is a small portion of psychometric chart. And another one, if the vertical line values lying above, अगर वर्टिकल लाइन की वैल्यू ऊपर जाती है तो हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और अगर ये वैल्यू हमारी नीचे आती है तो हमारा डीह्यूमिडिफिकेशन होता है, यानी ह्यूमिडिटी घटती है. ऐसे ही जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा कम होता है तो इधर कूलिंग हो जाती है, और जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीटिंग हो जाती है. साइकोमेट्रिक चार्ट के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ मैं. कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, cooling and humidification, heating and dehumidification, heating and humidification. जब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की स्टडी करते हैं, when we studied about the refrigeration cycle, then we will take two cycles, basic refrigeration cycle and vapor compression refrigeration cycle. रेफ्रिजरेशन साइकिल के दौरान हम दो साइकिलें पढ़ते हैं, बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ते हैं एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ते हैं. रेफ्रिजरेशन साइकिल के चार पार्ट्स होते हैं बेसिकली: इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व. दिस इज ए फिगर ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल. दिस इज योर कंप्रेसर, एंड व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड, जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड होता है
तो वो कंप्रेस्ड होकर आगे जाता है जहाँ पर हमारा ऑयल सेपरेटर लगा होता है। ये ऑयल सेपरेटर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट के अंदर ऑयल होता है उसको ये सेपरेट कर देता है। फिर यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है 230 टू 270 PSI तक रहता है। फिर ये हमारा आगे जाता है, यहाँ से ये कंडेंसर से होते हुए आपका ऊपर चला जाता है। यहाँ से होते हुए यहाँ पर भी इसका जो प्रेशर रहता है 270 टू ±5 PSI तक रहता है और 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है रेफ्रिजरेंट का। यहाँ पर एक लिक्विड रिसीवर रहता है, वो यहाँ पर लिक्विड को रिसीव कर लेता है और फिर ये यहाँ से रेफ्रिजरेंट आगे होता हुआ ये एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है, जहाँ से ये जो रेफ्रिजरेंट होता है एक्सपेंशन डिवाइस से जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है 5 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। यहाँ से बाहर निकलते ही जैसे ये बाहर एक्सपेंड होकर निकलता है तो इसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है और यहाँ प्रेशर 80 PSI तक रह जाता है। फिर ये इवेपोरेटर में होता हुआ यहाँ पर ये फिर थर्मल सेंसर के थ्रू नीचे आ जाता है। थर्मल सेंसर का जो मेन पर्पज़ होता है वो कंप्रेसर को ऑपरेट करना होता है। इवेपोरेटर यहाँ पर हमारा ब्लोअर फैन लेता है, जो इवेपोरेटर से हमारा कूलिंग कॉइल के थ्रू हवा जाती है और हमारी हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। इसी तरह से ये एक साइकिल चलती रहती है और हमारा जो है एयर कंडीशन वर्क करता रहता है। इसमें जो एक सिस्टम लगा होता है जिसे VFD कहते हैं, इसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहता है। बेसिकली ये बॉयल्स लॉ पे काम करता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। और चार्ल्स लॉ क्या होता है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और जैसे ही प्रेशर हमारा घटेगा तो टेम्परेचर भी घट जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 80 PSI प्रेशर हुआ, यहाँ पर 270 PSI प्रेशर था, प्रेशर घटा हमारा टेम्परेचर भी घट गया। तो ये चार्ल्स लॉ की वजह से हमारा टेम्परेचर घट गया और इसी वजह से इस कॉइल में हमारी कूलिंग होनी शुरू हो गई। कंप्रेसर के जो हमारे टाइप होते हैं, कंप्रेसर बेसिकली ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली कंप्रेसर एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है, फिर रोटरी टाइप होता है। रोटरी टाइप में स्क्रॉल कंप्रेसर आता है, स्क्रू कंप्रेसर आता है, सेंट्रीफ्यूगल में और एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो आते हैं 250 HP से 5000 HP तक आते हैं। हीट एक्सचेंजर जिसे इवेपोरेटर भी कहा जाता है, ये एयर कूल्ड होते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है हीट एक्सचेंजर को एयर कूल टाइप, वाटर कूल टाइप। एयर कूल्ड में नेचुरल ड्राफ्ट होता है, इंड्यूस ड्राफ्ट होता है, फोर्स ड्राफ्ट होता है। वाटर कूल्ड में शेल एंड ट्यूब टाइप होता है, शेल एंड कॉइल टाइप होता है, ट्यूब एंड ट्यूब टाइप होता है। नेचुरल ड्राफ्ट में सिर्फ हमारी कॉइल होती है, ये सिर्फ सिंपल एयर के थ्रू ये ठंडा होता है। इंड्यूस ड्राफ्ट में हमारा फ़ैन आगे की तरफ लगा होता है कॉइल से और ये एयर को सक कर रहा होता है। फोर्स ड्राफ्ट में फ़ैन कॉइल के पीछे लगा होता है। शेल एंड ट्यूब टाइप में क्या होता है, ये एक पूरी शेल होती है और इसके अंदर ट्यूब होती हैं। इस ट्यूब में क्या होता है, शेल एंड ट्यूब में नॉर्मल वाटर इन करता है और वो हॉट वाटर बाहर आ जाता है। यहाँ से हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट आता है और ये लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर हो जाता है। शेल कॉइल में शेल होती है, इसके बीच में से कॉइल जा रही हो। ट्यूब इन ट्यूब में ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर ही एक ट्यूब की कॉइल जा रही होती है। दिस इज़ योर कैपिलरी ट्यूब। प्रेशर और टेम्परेचर डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, ये भी टेम्परेचर डाउन करने के लिए यूज़ होता है। लिक्विड यहाँ से एंटर करता है और वेपर की फॉर्म में यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर हो जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आता है तो जब हीट गेन करता है तो वेपर की फॉर्म में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, कांस्टेंट एक्सपेंशन वाल्व होता है। ये वाल्व की टाइप्स होती हैं। फिर इसी तरह से दोबारा एक साइकिल दिखाई गई है, डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन का एक एग्जांपल दे रखा है। दिस इज़ योर कंप्रेसर, दिस इज़ योर कंडेंसर एंड दिस इज़ योर एक्सपेंशन वाल्व एंड दिस इज़ योर इवेपोरेटर कूलिंग कॉइल। यहाँ से एक ब्लोअर लगा हुआ है जो इस कूलिंग कॉइल से एयर को लेके ठंडी एयर बाहर फेंकता है। ये एक इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल थी, ये इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ होता है, ये आपकी कूलिंग कॉइल है सारी, ये कंडेंसर है। कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट हम R22 यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से सेकंड रेफ्रिजरेंट से वाटर यहाँ चिल्ड वाटर रन करता रहता है। चिल्ड वाटर यहाँ पंप लगा होता है, इसके थ्रू ये चिल्ड वाटर रन करता रहता है और यहाँ रेफ्रिजरेंट लगा रहता है और ये ब्लोअर के थ्रू यहाँ से हवा पास होती रहती है। हमारी ठंडी एयर इसकी कॉइल से टकराकर बाहर निकलती रहती है।
टाइप्स ऑफ एसी। बहुत सी जगह इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के एसी होते हैं, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के एसी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, सेंट्रल एयर कंडीशन, वीआरवी, वीआरएफ, फैन कॉइल यूनिट और पैकेज यूनिट। विंडो सिंपल जिस तरह का होता है, इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, ब्लोअर और इवेपोरेटर कॉइल होती है। इसका जो 6 फुट होता है मिनिमम बेस से डिस्टेंस, और 2 फुट होता है इसका वॉल से डिस्टेंस। मिनिमम जो इसकी 0.25 टू मिनिमम मैक्सिमम 3.5 TR तक इसकी वैल्यू होती है। स्प्लिट इंडोर इवोपरेटर होता है, इसमें 3 TR से 3.5 TR तक आता है। ये भी पर्पज़ उसी का वैसे ही होता है। आउटडोर होता है, इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व होता है। इंडोर में इसका आपका इवोपरेटर कूलिंग कॉइल होती हैं। ये वॉल माउंटेड होता है, टावर टाइप होता है, फ्लोर माउंटेड होता है, हाइड अवे होता है, सीलिंग सस्पेंड। डक्टेबल स्टिल्ट ऐसे डक्ट के थ्रू यहाँ से आपकी सारी जितनी भी कूल एयर होती है वो डक्ट के थ्रू यहाँ से सप्लाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग 3rd क्लास ऑफ HVAC।